Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be doing fine in Ramadan and you would be collecting the benefits given by Ramadan and all the blessing of Almighty Allah. Once again, I'm here, Betty. We are going to discuss remaining lecture of the topic Reflections on the Reawakening East, which you can see on your screen. We discussed till third para of page number 20. In the last passage of this chapter indicates us of this chapter, not this chapter, page number 23rd paragraph, the writer is suggesting that some remnants of the white imperialism are to be swept away from Asia. So different kind of examples were given there. But now the supremacy of East and West both have been distributed to both the blocks and both poles of the world. So now, in the upcoming paragraph, the writer suggests some of the advices to the people of Asia, to the country of Asia. Okay, if they want to get progress, so what should they do? Yani what sort of things should be adopted by them, and what sort of things should be given up by them. So you should be ready along with your pencil and book. I'm going to read and explain fourth para of page number 20. Writer says, there is only one imperialism which now offers any menace to Asia. It is that of Russia. The tradition of civilization in Asia are ancient and glorious. I do not wish to see them wiped out as I fear is happening in China by a degraded form of Western culture, communism. Though this is not widely recognized either in the East or in the West, is the most modern and the most virulent form of Western imperialism. Its philosophy is German and its regime is imposed by the military force. If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be little in it that could be welcomed by any friend of humanity or of civilization. Writer says, in past there have been many danger and many problems for Asia and the people of East, but now when the power and civilization have been distributed to the both of the blocks in the upcoming, this passage basically indicates about the 20th century. And writers say that in Asia there is only one power and one supreme manifestation of evil power, that is Russia, which can be very dangerous for the rest of the people in Asia. And writer also says a positive point that the tradition, civilization, culture of Asia is very ancient and glorious, and he doesn't want or he doesn't wish it to be removed from Asia, as he has seen in China, because the people of China, they adopted a particular system which is known as communism, and this system degraded the beauty of China as well. And writer says that communism is the most effective weapon from the West which has been given to the East so that they could make them slave. Yani the Western people, they can make Eastern people slave of them. That's why they have spread this particular network of communism. The question which arises in the mind is, what is communism? So I would like to tell you some of the points regarding it. There has been a personality in the history of the world, Karl Marx. He was born in 1818 and he died in 1822, or some of the books they refer 1883. He was born in Germany. He started getting education over there, but just because of his political ideology, he was exiled. यानी he was kicked off from Germany. जर्मनी से इसको बाहर निकाल दिया गया था. ये वो शख्स है. He has written down a particular book which he named Communist Manifesto. And just because of this book he is known as father of communism. इसको father of communism कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो है ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने वाला शख्स जो है वो यही है. There have been many
There have been many rules and regulations, there have been many systems to rule the world in different kind of countries. Some of the countries are democratic, some of the countries are autocratic countries, dictator countries are there. तो मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे निज़ाम जो है वो दुनिया के अंदर किए जा रहे होते हैं, जैसे फ्यूडलिज़म है, कैपिटलिज़म है, सोशलिज़म है, इसी तरह का एक निज़ाम है कम्युनिज़म। इसके इस फ़िलासफ़ी की बिना पर इसको जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था, फिर ये इंग्लैंड में आने के बाद अपने आप को इसने रिकोप किया था। और कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम इससे इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ही सेज कि एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी हिज पावर, वेल्थ एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। सॉरी, बट व्हेन द पर्सन नीड्स दीज थ्री थिंग्स जस्ट टू गेट फ्रॉम द सोसाइटी, तो ही कैन टेक इट बट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। यानी माशरे के अंदर जो है ना, सारा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के जरिए चलाया जा रहा होगा और एक एक चीज़ को लुक आफ्टर जो है वो गवर्नमेंट कर रही होगी। उसकी वजह क्या है, तो आप वो पेज पे देख भी सकते हैं, बुक के अंदर पेज नंबर 20 पर जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ इट्स फिलोसफी जर्मन एंड इट्स रिजीम इज इम्पोज बाय मिलिट्री फोर्स। इसका फ़लसफ़ा जो है वो जर्मन से निकला हुआ और इसकी ताकत को जो सुपर इम्पोज कर रही होती है वो मिलिट्री फोर्स है, तो कोई बच ही नहीं सकता इसके अंदर। और यू पीपल आर वेल अवेयर देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट देयर कि हर बंदी की जो एबिलिटी होती है ना वो उसकी नीड से ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इफ़ अ पर्सन अर्न्स 1 लाख रुपीज़, ही हैज़ द एबिलिटी टू अर्न 1 लाख रुपीज़ एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी, he contributes to the society, but when he needs it, so his necessities are like 70,000 rupees or 80,000 rupees, so there would be a difference of 30 or 20,000 rupees, which will not be owned by the person who has done that particular work or the services have been provided by him. That particular amount would be owned by the government. And dear students, if you want to understand the concept of communism, so you should try to search on net as well. So you would be having different kind of example there. तो ये आप आसानी से समझ भी सकते हैं। अब you can see that the death year of Karl Marx 1882 when he passed away, that was the end of the 19th century. That's why what actually happened कि Russia, which was known as USSR, later on it became Russia, they adopted this particular system. और दैट्स वाई रशिया इज़ कॉल्ड एन ऑटोक्रेटिक कंट्री राइट नाउ। डिक्टेटरशिप को फॉलो करने वाला एक मुल्क है। और जस्ट बिकॉज ऑफ द सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन जो है वो रशिया के अंदर आया था, जिसकी बिना पर रशिया जो है इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी पार्ट्स। आपने सुना होगा कि रशिया जो है वो टूट गया था और ये चलता रहा था सिस्टम। 1991 के अंदर बेसिकली द रिजल्ट appeared in the end of the 20th century. That's why writer says that there is only one imperialism which is going to be very dangerous for Asia, that is Russia, just because they follow the rules and regulation of communism. और जितना ज़रूरी था उतना मैंने आप लोगों को लिख कर भी समझा दिया है। बट द लास्ट पॉइंट इन दिस पैराग्राफ राइटर सेज कि इफ़ द रीअवेकनिंग एशिया वर टू टेक द फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन टू कम्युनिज्म, यानी एशिया के जो अगर आज़ाद होने वाले ममालिक हैं, अगर ये अपने घुटने टेक देते हैं आज़ाद होने के बाद भी कम्युनिज़म के ख़िलाफ़, तो राइटर सेज कि उनका आज़ाद होना ना होना दोनों बराबर है। बिकॉज द पीपल ऑफ द हिस्ट्री दे विल नॉट वेलकम एनी कंट्री ऑफ एशिया टू गेट फ्रीडम। कभी भी वो लोग इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे। नाउ वी प्रोसीड टू लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 20। Writer asks a question कि what then should an enlightened and impartial spectator hope with regard to development of Asia? यानी if a person who has a very common thought, he doesn't think only about west or east or north or south, he just becomes a simple person of the whole world or a common person of the whole world. So what should be thought by that person about the development of Asia? So writer says कि there are some things which, though in many ways regrettable, it is necessary to accept as condition of survival in the modern world. What is the basic reason that of saying this particular point? The writer says that many of the countries in Asia, they got freedom in 20th century, during 20th century. Or backwardness is very common. Poverty is more than 60 or 70% in Asia.
That's why the writer is saying that कि many things which is being followed by the Asian people that is regrettable, मतलब काबिल अफसोस तो है, लेकिन चूँकि it has become the condition of survival in the modern world, जदीद दुनिया के अंदर अगर हम रहना चाहते हैं, if we want to maintain our position in the modern world, तो हमें इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो है वो ट्रेडिशनल रॉयल्टीज़ को फॉलो करने वाले थे, जो कहते हैं ना कि मतलब बाप दादाओं की बातों को फॉलो करने वाले थे, तो वो तरक्की की राह को उस तरह नहीं देखते थे जैसा उनको देखना चाहिए था। दैट इज़ व्हाट बीइंग मेंशन्ड बाय द राइटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज इज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th century was based upon a virtual monopoly of machine production, and the power of Russia and the United States in the present day is due to their supremacy in this respect. राइटर कह रहा है कि इन 20th century, राइट, वी आर लिविंग 21st century, तो हम इसको यूँ भी ले सकते हैं कि इफ़ अ कंट्री विच गेट्स independence during these days and if they want to survive in the modern world, so they needed to accept one condition of survival. There are many conditions of survival, but one most important condition is growth of industrialism. Yani that country should spread a large network of industries if they want to sustain their position. क्योंकि अभी का जो दौर है वो सिर्फ सिविलाइजेशन और पावर पे गुजारा नहीं करेगा. Many things are being faced by the people around the world. And if a country wants to maintain her position, तो she should do that particular work as well. और राइटर gives an example कि 19th century के अंदर जो इंग्लैंड था, इसको वर्चुअल मोनोपोली हासिल थी पूरी दुनिया के अंदर, दूर दूर तक इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था मशीन प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद पिछली सदी की बात अगर की जाए 20th century के अंदर, रशिया और अमेरिका, ये दो मुल्क जो है वो मशीन प्रोडक्शन के अंदर आगे की तरफ आए, जिनकी बिना पर उनका जो रास्ता सुपर पावर बनने का है वो कदरे आसान हो गया। सॉरी। देन it is useless to talk against mechanization because it is the source of power and because those who lag behind have difficulty in preserving independence. और वो लोग जो इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं और उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों में फैला रहे होते हैं और जस्ट दे प्रोवोक देम, तो राइटर कह रहा है क्या कि इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ बात करना फजूल है, बेसलेस है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जिन मुल्क में नहीं होगी तो उनको तरक्की करने में, तरक्की तो चले बहुत आगे की बात है, लेकिन अपनी आज़ादी को लेने के बाद बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दे नीडेड टू फेस अ लॉट ऑफ म्यूजिक देयर। क्यों? वन एग्जाम्पल इज बीइंग मेंशन, बल्कि यू मे कॉल इट टू एग्जाम्पल्स आर being given there कि when industrialism was new in England, it roused indignant protest on account of its ruthlessness and destruction of beauty. These protests were eloquently expressed in Carlyle, past and present, but they remained completely ineffective. Writer says that when industrialism was introduced in England, the people they totally went against of it, and it roused indignant protest. इसने बहुत एहतजाज करवाया था लोगों को, जिसके बिना पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था. बट दैट टाइम द पीपल वर नॉट very acknowledged about that particular thing कि what sort of benefit they are going to get. इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था बेटे, वो मैं आप लोगों को डेट वाइज यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ. 1760 यानी मिड ऑफ द 18th सेंचुरी से लेकर 1820 तक, और कुछ जगह पर लिखा हुआ है 1840 तक, यानी ऑलमोस्ट द ड्यूरेशन बिकम्स 80 ईयर्स, राइट. 1760 से लेकर 1840 तक जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर मौजूद था, यानी मिड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड जो है उसको एक बहुत बड़ा कमांड हासिल हो चुका था. और इसके बाद फिर 20th सेंचुरी के अंदर रशिया और अमेरिका जैसे मुल्क आ गया है. बट ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर एरा और दीज ईयर्स इंग्लैंड हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड द प्रोटेस्ट हैव बीन मेंशन इन द बुक ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. तो ये जो बुक का नाम है बेटे, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, क्योंकि MCQs के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है, और राइटर का नाम जो है वो कार्लाइल लिखा हुआ है. फिर उसके बाद एग्जांपल दी जा रही, दे आर सिमिलरली इनइफेक्टिव इन द प्रेजेंट डे. गांधी, इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस इन्फ्लुएंस ओवर हिज कंपेटिटर्स, वाज टोटली अनेबल टू रिस्टोर द स्पिनिंग व्हील मशीन प्रोडक्शन. They are similarly ineffective in the present day. Gandhi, in spite of his immense influence over his compatriots, was totally unable to restore the spinning wheel. Machine production and scientific technique generally is bound to prevail wherever there is sufficient civilization to make it possible.
इंडिया के अंदर जो गांधी साहब थे, बेसिकली दैट he has done like silly mistake, just because of that he has to face a lot of problem there. कि he introduced a particular concept in the campaign of spinning wheel. स्पिनिंग व्हील लाइक इन उर्दू दैट इज़ कॉल्ड चरखा। आपने देखा होगा कि इंडिया का जो झंडा है उसके ऊपर भी जो तिरंगा 3 कलर हैं उसके दरमियान में एक सर्कल बना हुआ है, तो वो जो घूमता हुआ पहिया है स्पिनिंग व्हील जो है, इट्स कॉल्ड द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। तो गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब बेसिकली व्हाट इज़ स्पिनिंग व्हील, तो इसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन जो पेज नंबर 22 पर दी हुई बेटे, अगर आप लोग वहाँ देखेंगे तो पेज नंबर 22 पर नीचे नोट्स कैरिंग डली हुई है नंबर 3, द स्पिनिंग व्हील। Gandhi made the spinning wheel the symbol of his social philosophy, the virtual boycott of foreign made goods and the fostering of domestic cottage industries. जज्बात का फैसला था उसका। Basically people they appreciated him a lot, they loved him a lot, that's why he did that particular thing, और he was very overconfident that moment ना, इसको यही कह सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर तो यही कहा जाता है कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स का, और अपने जो होम मेड कॉटेजेस हैं उनके हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन द ओन कंट्री। कुछ चीज़ें बाहर से ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क में नहीं होती, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, जिसकी बिना पर गांधी को बहुत बड़ा सेटबैक भी मिला था और इंडिया की जो इकॉनमी थी वो काफ़ी कदरे जो है ना ख़राब भी हो चुकी थी। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इफ़ एनी कंट्री, क्योंकि दैट्स इंडिया भी एशिया के अंदर है और एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, दुनिया की 2nd नंबर वाली आबादी वाला मुल्क है इंडिया। राइटर सेज एंड सजेस्ट इफ़ अ कंट्री वांट्स टू गेट प्रोग्रेस, सस्टेन इट्स पोजीशन, तो मशीन प्रोडक्शन के ऊपर उसको काम करना पड़ेगा, इसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक ड्रॉबैक भी वो बता रहा है, जो पेज नंबर 21 की 2nd पैराग्राफ में वो क्या कहता है, सी The most sinister application of scientific technique is in regard to weapon of war. यानी साइंस का जो सबसे घटिया इस्तेमाल किया गया है वो वेपन को बनाने में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा किसी चीज़ का भी इस्तेमाल साइंस ने गलत तरीके से नहीं किया। There has been no usage of science which is going to create negativity among the people just because there is only one thing which is called scientific technique. और साइंटिफिक टेक्निक का जो सबसे घटिया इस्तेमाल हुआ है वो वेपन ऑफ वॉर के अंदर हुआ। Writer said must be feared that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war. यानी 2 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड बाय द राइटर और वो खुद ही जवाब भी दे रहा है। कह रहे हैं क्या हमें इस बात का डर होना चाहिए कि एशिया के जो आज़ाद होने वाले ममालिक है वो अपनी तमाम तर तवानाई यानी द होल एनर्जी ऑफ देम वुड बी डिवोटेड टू वॉर, क्या वो जंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मे वी होप दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ पीस। कि या हमें इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि एशिया के जो आज़ाद होने वाले ममालिक हैं वो जंग को छोड़कर अपनी तमाम तर जो ताकत या तवानाई है वो अमन को फैलाने में इस्तेमाल करेंगे। क्या ये चीज़ होनी चाहिए? तो राइटर सेज और आंसर्स, आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन दिस रिस्पेक्ट। कि ये बात कबल वक्त है कि आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम, बट इट इज़ नॉट टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ डिज़ायरेबल। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना, राइट, कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर नोबडी नोज, लेकिन व्हाट शुड हैपन नोबडी नोज अबाउट, but what is desirable that can be thought by the people in premature time as well. The organization of the world into two vast blocks filled with bitter hostility to each other is disastrous. Writer says that the world has been distributed in 2 huge blocks, east and west, और they have got a very severe hostility to each other. दोनों के दरम्यान में दुश्मनी जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है, एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। ईस्ट के लोग जो है वो वेस्ट के कल्चर और ताकत को नहीं मानते, वेस्ट के लोग जो है वो ईस्ट के कल्चर, सिविलाइजेशन और ताकत को नहीं मानते। इन दोनों के दरम्यान में एक जो है लड़ाई चल रही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट नॉट बिलोंगिंग टू ईदर ब्लॉक इज टू बी वेलकम सिंस इट गिव्स सम होप दैट इफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल एस्केप इट्स हॉरर। राइटर कह रहा है कि वो तमाम तर ममालिक जिनका ताल्लुक ईस्ट और वेस्ट से नहीं होगा तो वो लोग जो है एक पॉजिटिव रोल ये अदा करेंगे कि अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इसकी तबाही से बच जाएगी। बिकॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसका एक रीज़न ये है कि मैनी ऑफ द पीपल दे कॉल के दे स्पीक और दे सजेस्ट कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी नहीं, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन तीसरी जंग अजीम के अंदर अगर जंग अजीम होगी तो 2 बातें होंगी, या तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी या फिर वो ममालिक तबाह होंगे जिनके पास एटॉमिक ताकत है। बेसिकली दे वुड बी टारगेटिंग ईच अदर। अब दुनिया के अंदर सारे ममालिक जो है वो
सबके पास एटॉमिक ताकत मौजूद तो नहीं है, इसलिए जिनके पास एटॉमिक ताकत नहीं होगी वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे, दे विल नेवर पोक देयर नोज इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल। इस तरह एक बहुत बड़ी आबादी जो है इसकी तबाही से और इसके खौफ से बच जाएगी। आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैव बीन ऑफ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन and should not allow itself to be swayed by some of the worst feature of Western thinking under the impression that this is the only way to preserve independence। तो राइटर ये कह रहा है कि मेरा ये ख्याल है कि एशिया को अपनी आज़ादी बरकरार रखनी चाहिए और अपने तहजीबी जो मामलात हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, और मगरब से जो चीज़ मगरब से यहाँ पर आ रही है उसको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं तो ये बात उनको माननी पड़ेगी। दे नीड टू start a new tradition, new civilization which should be different from the rest of the world। Why does he say so? राइटर ने ऐसा क्यों कहा है? तो बेटे पेज नंबर 21 का जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर ये बात की जा रही थी, क्योंकि हमारे दरम्यान में भी जो है एक चीज़ मौजूद होती है, एक सवाल होता है कि दुनिया के अंदर देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट वन। दुनिया का सबसे बड़ा जो बर आज़म है वो एशिया है। इसके अलावा जो 6 बर आज़म है वहाँ पे तरक्की ज़्यादा है, एशिया में तरक्की कम है। तो मैनी रीज़न्स आर देयर, रूट कॉजेज आर देयर। उसमें से एक रीज़न ये है कि एशिया के अंदर इत्तेहाद नहीं है, यूनिजन नहीं है, यूनिटी नहीं है, और उसके ना होने की वजह क्या है और नहीं हो सकती उसकी वजह क्या है। बहुत अच्छा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ क्या, इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रिपल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी and only opposition to western imperialism has caused people to think in these terms। कहा जा रहा है कि एशिया के अंदर इत्तेहाद की बात करना एक गैर सतही बात है, मतलब बेसलेस स्टेटमेंट है, हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। और ऐसा नहीं कि मगरबी तहजीब से हमें नफरत है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्पीक सच काइंड ऑफ थिंग्स। राइटर सेड नॉट सो। व्हाट रीजन डज ही गिव? सी ही सेड एशिया कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड and at least very 3 distinct civilization, that of Islam, that of India and that of China। कि एशिया के अंदर 3 अलग अलग तहजीबें मौजूद हैं, उसके अंदर इस्लाम मौजूद है, इंडिया मौजूद है और चाइना मौजूद है। इस्लाम यानी मुस्लिम, इंडिया के अंदर हिंदू और चाइना के अंदर बुद्धिस्ट हैं। और आपको पता है इन तीनों के दरम्यान में एक ट्रायंगल बन जाता है, और वो ट्रायंगल क्या है कि मुस्लिम्स, हिंदूज़ और बुद्धिस्ट। इनकी तहजीब, इनकी सकाफत और इनका मज़हब जो है वो आपस में बिल्कुल अलग है। मुस्लिम की हिंदूज़ और बुद्धिस्ट से नहीं बनती, बुद्धिस्ट की जो है वो मुस्लिम और हिंदू से नहीं बनती, और हिंदूज़ की जो है वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम से नहीं बनती। अब इनके डिफरेंस को अगर हम मिलाकर इफ़ यू काउंट 100%, तो आपको पता दुनिया के जो रेस्ट ऑफ द 6 कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो मज़हब है वहाँ पर फॉलो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। और आपको पता है क्रिश्चियनिटी जो है वो उसका भी मुस्लिम से फ़र्क है, हिंदू से भी और बुद्धिस्ट से भी है। यानी जितना इनका आपस में फ़र्क है उतना ही इंडिविजुअल इनका फ़र्क क्रिश्चियनिटी से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ एशिया एज वेल। अब क्रिश्चियनिटी भी एशिया में जो है वो प्रमोट होना शुरू हो गए। तो दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट में एक मज़हब, एक जैसी सोच, और दुनिया के बकिया एक कॉन्टिनेंट के अंदर 3 अलग अलग सोच है, और चौथी सोच भी यहाँ पर आ चुकी है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर इत्तेहाद जो है वो तहजीब और मज़हब के नाम पर तो हो नहीं सकता। अब एक आध रीज़न है जिसकी बिना पर ये इत्तेहाद में आ सकते हैं, वो आगे चल कर आएगा। देखें क्या लिखा हुआ। These differed from each other just as much they differed from the civilization of Christian। मैंने बता दिया आपको। And there is not the faintest reason to expect them all to act in unison। मतलब कोई एक छोटे सा भी रीज़न नहीं है हमारे पास, एक छोटी सी भी बात मौजूद नहीं जिसकी बिना पर हम ये कह सकते कि एशिया के अंदर इत्तेहाद हो सके। तो फिर करना क्या चाहिए? तो राइटर सेड व्हाट इज़ टू बी होप्ड इज़ नॉट एन एंडीवर आफ्टर कल्चर और पॉलिटिकल यूनिटी, कि हम इस बात पे मतलब जद्दोजहद ना करें कि कल्चर या पॉलिटिकल यूनिटी हमारे पास हो जाए, बट अ डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एट होम एंड टू रिस्पेक्ट इट एल्सवेयर। कि आज़ादी को हम इज़्ज़त दें, अपने मुल्क में मिले या कहीं पर भी मिले। एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस, राइटर कह रहा है कि जब मैं आज़ादी की बात करता हूँ तो आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स, कि सिर्फ सियासत को ही आज़ादी होना चाहिए, बट ऑल्सो ऑफ कल्चर एंड तहजीब को भी आज़ाद होना चाहिए। एंड देयर इज़ द ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चर यूनिफॉर्मिटी। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ एवर बीन कॉस्मोपॉलिटिज्म। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी तहजीबें वो कभी भी इंटरनेशनल नहीं रही हैं, कॉस्मोपॉलिटन नहीं रही हैं। अब पेज नंबर 21 के जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज़ बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। अब अगर कोई मुल्क ऐसा है जो ट्रेडिशनल रिवालिटीज़ को फॉलो करता है,
उसको ये चाहिए कि अपने ट्रेडिशनल रियलिटी के अंदर जो है ना, कॉस्मोपॉलिटनिज्म के अंदर जो है वो साइंस और मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवाए। अब ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म है क्या? तो देखिए पेज नंबर 23 के अंदर नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कल्चर डिस्कवर्ड डिवोर्स फ्रॉम लोकल कैरेक्टरिस्टिक द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द वर्ल्ड रादर देन टू एनी पर्टिकुलर कंट्री। यानी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे एक ही काउंट करें, अलग अलग सोच के साथ मौजूद ना हो, इसको कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहा जा रहा है। अब राइटर क्या कह रहा है कि मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी, यानी दोज पीपल हु आर द फॉलोवर ऑफ ट्रेडिशनल रिवालिटीज एंड इफ दे वांट टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, तो दे नीड टू एक्सेप्ट साइंस एंड मशीनरी एज द मोड ऑफ सर्वाइवल। These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvent as they tend to put an end not only to what was bad but also to what was good in the culture of the past. अब ये जो साइंस और मशीनरी है ना, इससे वादे तौर पर एक डिफरेंस वादे किया है, एक डिफरेंस बताया हुआ है कि वो तमाम तर चीज़ें जो बुरी थी पिछले तहजीबों के अंदर या पिछले ज़माने के लोगों के अंदर, उसको ख़त्म भी कर दिया। और दूसरी तरफ क्या है कि उनमें जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ थी उनका भी फ़र्क वाज़े कर दिया है इस साइंस और मशीनरी ने। यानी राइटर कह रहा है कि साइंस और मशीनरी को एडॉप्ट करना चाहिए, बड़ा कॉमन सा फैक्टर है, लेकिन ये भी वो नसीहत कर रहा है कि इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दे आर नेसेसरी एंड दे आर गुड इफ़ राइटली कंट्रोल्ड, कि ये ज़रूरी भी हैं और इनको सही तरीके से चलाया जाए तो ये फ़ायदेमंद भी है। बट इट नीड नॉट टू बी एडमिटेड दैट द एडुलेशन ऑफ देम शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इफ़ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट साइंस एंड मशीनरी तो यू आर गोइंग टू गिव अ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, लाइक आप अपने मॉरल वैल्यूज़ को डिग्रेड कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को आप भूल जा रहे हैं, इंसानियत को भूल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइटर से इफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी टॉलरेबल, अगर इंसानी ज़िंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाना है ना, तो इट कैन नॉट बी होली मैकेनाइज्ड, इसको मुकम्मल तौर पर मशीनी हम बना सकते नहीं है। जैसा कि वेस्ट के अंदर हुआ कि वेस्ट के अंदर जो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने, उसकी वजह क्या थी? इंसानियत को वो भूल चुके थे। इट मस्ट कंटिन्यू टू कंटेन पोट्री एंड म्यूज़िक एंड आर्ट एंड लव एंड सिंपल जॉय ऑफ लाइफ। यानी इंसानी माशरे को जो इंसान बनाने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको भी रखना ज़रूरी है, जिसमें पोट्री, म्यूज़िक, आर्ट है, लव है और सिंपल जॉय ऑफ लाइफ, ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। दीज आर द थिंग दैट टेंड टू बी फॉरगॉटन द मशीन एज। मशीन एज के अंदर इन तमाम बातों को भुला दिया गया है। एंड दे आर फॉरगॉटन द कम्युनिस्ट फिलोसफी। कम्युनिज्म क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कम्युनिस्ट फिलोसफी के अंदर भी इसको इज्जत नहीं दी गई। एंड दे आर नॉट गिवन सफिशेंट वेट बाय मैनी मैन हु थिंक देमसेल्फ इन द फॉर फ्रंट ऑफ प्रोग्रेस। और वो तमाम तर ममालिक यानी दोज कंट्रीज़ हु थिंक देमसेल्फ, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि तरक्की के सफ़े अव्वल में मौजूद है, वो भी इसको इतनी इज्जत नहीं देते। आई शुड लाइक टू होप, मैं इस बात की उम्मीद रखूँगा दैट रीअवेकनिंग एशिया विल रिमेंबर दीज एलिमेंट्स इन गुड लाइफ, कि आने वाली अच्छी ज़िंदगी में एशिया के आज़ाद होने वाले ममालिक इन तमाम बातों को याद रखेंगे। आई शुड लाइक टू थिंक दैट रिवॉल्वरीज एंड द स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस विल नॉट बी सो सीवियर एज टू कंपेल मिडलिस्टिक मैकेनाइजेशन। यानी एशिया के जो ममालिक हैं उनको दुश्मनी निभाना इतना मुश्किल नहीं होगा आज़ादी हासिल करने के लिए, जबकि ज़्यादा मुश्किल काम उनके लिए हो कि मशीनी चीज़ों का ग़ुलाम बनना। राइटर यहाँ पर एक सजेशन दे रहा है बेटे कि आई शुड से टू द रीअवेकनिंग नेशन ऑफ एशिया, एशिया के जो आज़ाद होने वाले ममालिक हैं उनको मैं इस बात की नसीहत करूँगा कि योर इंडिपेंडेंस विल नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिजर्व, स्पेशली इन व्यू ऑफ द डिवीजन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टू हॉस्टाइल कैम्प, कि दुनिया दो बड़े हिस्सों में मुनकसिम हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ऐसे मौके पर अपनी आज़ादी बरकरार रखना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन एक बहुत प्यारी बात उसने की कि बट वट विल परहैप्स बी मोर डिफ़िकल्ट विल बी टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट। यानी एशिया के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होगा कि मगरिब की जो की हुई गलतियाँ उसको रिपीट करने से अपने आप को बाज रखना। अब जो पैराग्राफ है जितनी लाइनें में पढ़कर रुकूंगा बेटे, दैट शुड बी अंडर ब्रैकेट, क्योंकि ये पास पेपर में कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आया हुआ है और आ भी सकता है। तो जितनी लाइनें मैं पढ़ूंगा दैट शुड बी अंडर ब्रैकेट। The West throughout the last 5 centuries have displayed extraordinary energy which has taken many forms, some good, some bad. It has explored the world from pole to pole. It has learned the secret of atoms and stars. It has discovered how to produce such an abundance of necessaries and comfort as previous ages would have thought unimaginable.
But all this, which might have ministered to human happiness, has been vitiated by one fatal fault, the love of power over other human beings. यहाँ तक को आपको निशान लगाना है, ये पास पेपर के अंदर सीम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ चुका है। इसमें राइटर ये कह रहा है कि जो वेस्ट है, इसने पिछली 5 सदियों के अंदर, अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक ईयर ऑफ बर्थ बताई थी 1451 से लेकर 1506 तक, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि फादर ऑफ अमेरिका था। इसके जाने के बाद साइंस और मशीनरी जो है वो यूरोप के अंदर बहुत कॉमन हो गई थी। तो 1506 का मतलब क्या हो गया, इट्स अ बिगनिंग ऑफ दी 16th सेंचुरी। तो वहाँ से लेकर अब तक तकरीबन 500 सालों के अंदर वेस्ट ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई है पूरी दुनिया को। इसमें से सम ऑफ द एनर्जीज हैव टेकन गुड फॉर्म एंड सम ऑफ द एनर्जीज हैव टेकन बैड फॉर्म। इसने दुनिया को एक पोल से दूसरे पोल तक डिस्कवर कर लिया, एटम्स और स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है, कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे पैदा कर सकते हैं, अपनी नेसेसिटीज़ को कंफर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सब बना दिया गया। लेकिन इसकी एक गलती जिसने इन तमाम अच्छाइयों को बुराइयों में कन्वर्ट किया, कि इसने ताकत को जो है वो इंसानियत पे तरजीह दी। ये सबसे बड़ा नुकसान था वेस्ट को। क्यों था? तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि अफ्रीकन द नेशन द लाइक हैव बीन टॉर्चर्ड एंड ऑपरेट बाय द एनर्जेटिक इंजेन्युइटी ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट। मगरबी जो फतवाहात थे उसके अंदर एशिया और अफ्रीका के लोगों को बहुत ज़्यादा जुल्म सितम और नाजायज़ ताकत का नाजायज़ नुकसान उठाना पड़ा। इफ़ द वर्ल्ड इज़ टू बी हैप्पी, अगर दुनिया को खुशहाल बनाना है, एनर्जी एंड इंजेन्युइटी मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सपेंडेड इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दोज हु हैव लेस ऑफ दीज क्वालिटीज। यानी ताकत का और वेपन्स का इस्तेमाल उन लोगों पे तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जिनके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद ना हो। मैन काइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विच हैज़ नेवर हिदरटू एग्जिस्टेड, कि इंसानियत को जो है ना बाहमी तौर पर एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए, जो कि आज के दौर में मौजूद नहीं है। परहैप्स गालिबन सम एट लीस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ एशिया विल हैव लर्न दिस लेसन फ्रॉम देयर सफरिंग एट द हैंड ऑफ द इंजीनियर डिस्पॉट। एशिया के चंद राइटर कह रहे हैं कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने ग़ुलामी की आबो हवा से अपने आप को आज़ादी हासिल करवाई है, तो वो लोग चूँकि दूसरे हाथों में रहे, दूसरे हाथों की ग़ुलामी करते रहे, तो शायद उन लोगों ने ये चीज़ें सीखी होंगी। लेकिन ज़्यादातर ममालिक के अंदर वो ये देख रहा है क्या कि परहैप्स ऑन दी अदर हैंड दे विल ओनली हैव एक्वायर्ड अ विश टू इमिटेट द रूथलेस मैस्टरडोन हु आर ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिजास्टर। और दूसरी तरफ ये लोग वही हरकतें करें जो वेस्ट ने की थी। यहाँ जो वर्ड लिखा गया मैस्टरडोन, इसकी मीनिंग पेज नंबर 23 पर है बेटे, कि जाइगेंटिक प्रीहिस्टोरिक एनिमल सिमिलर टू एलिफेंट बट लार्जर इन एंड इवन मोर पावरफुल, कि यह हाथी की तरह होता था लेकिन साइज में वो बड़ा होता था, डायनासोर्स के ज़माने का ये जानवर था। तो राइटर जो मैस्टरडोन है वो किसे कह रहा है, वेस्ट के जितने भी बड़े बड़े रूलर गुजरे हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा एंड सच काइंड ऑफ स्टूपिड पीपल लाइक, तो उनको ही कॉपी करने की आदत जो है वो एशिया के अंदर भी कुछ ममालिक के लोगों में आ चुकी है। लेकिन लास्ट पॉइंट जो राइटर ने एक नसीहत की वो ये कह रहा है कि आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फॉली। पेशेंट को ही करने का कोई इसको तजर्बा भी नहीं है और ना ही ये इंसानी गलतियों की गहराई तक पहुंच सकता है। बट वाइल देयर इज अनसर्टेनिटी होप एंड एप्रीहेंशन आर इक्वली रैशनल। जब कोई चीज़ गैर यकीनी हो यानी यकीन ना हो तो उम्मीद बेहतर है कायम रखना, एंड होप इज़ लाइकली टू बी मोर बेनिफिशियल। So long therefore as hope remains possible, I shall continue to hope and a large part of my hope will be centered in the east। कि जब तक दुनिया में उम्मीद कायम है तो मैं उम्मीद कायम रखूँगा और मेरी उम्मीदों का जो मरकज़ रहेगा वो ईस्ट है। मुझे वेस्ट से कोई अच्छी तवक्को या कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। ये आपका रिमेनिंग पार्ट का लेक्चर था बेटे इस चैप्टर का, विच हैव बीन डन आउट देयर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करवा दूं जो आप याद रखिएगा। एक पैराग्राफ तो नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन जो है मैंने निशान लगवा दिया आपको पेज नंबर 22 पर। आपको मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा कि पेज नंबर 20 के अंदर जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है कि देयर इज़ ओनली वन इम्पेरियलिज्म से लेकर ह्यूमैनिटी और ऑफ सिविलाइजेशन तक, ये पैराग्राफ। पेज नंबर 21 का जो दूसरा पैराग्राफ है द मोस्ट सिनिस्टर एप्लीकेशन से लेकर प्रिजर्व इंडिपेंडेंस तक, वो वाला। और इसी पेज के अंदर जो तीसरा पैराग्राफ है इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रिफल से लेकर कॉस्मोपॉलिटन तक, ये पूरा पैराग्राफ। और पेज नंबर 21 का जो लास्ट पैराग्राफ है मोस्ट मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज बेस्ड अपॉन से लेकर पेज नंबर 22 की पहली लाइन के अंदर दूसरी लाइन के अंदर प्रोग्रेस लिखा हुआ है यहाँ तक। तो ये टोटल जो पैराग्राफ आपके पास हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ये पैसेजेस सेम कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे।
और आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इस चैप्टर की पाकिस्तान एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड की द वर्ल्ड एज आई सी इट की इन 3 चैप्टर की रीडिंग को आदतन अपने पास शामिल रखिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।